Students, today I am going to teach you grammar topic prepositions. Preposition definition is also here. A preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in the relation to something else. Kinds also is here. Kinds of preposition: simple preposition, compound preposition, double preposition, participle preposition, and a phrase prepositions. And here are some examples also. Just like you are seeing in this picture, a girl is on the table. You are seeing here a boy outside the door. So we will discuss in detail what are the rules of prepositions. Yes, we will discuss preposition. What is preposition? I have told you define that a preposition is a word which is used a noun or pronoun with a noun or pronoun to show the relation with something else. Here, noun or pronoun has any relation with other words, just like noun, verb और adjective. जब किसी भी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से जुड़ता है, चाहे वो नाउन हो, वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, तो उस रिलेशन को जोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशन की जरूरत होती है. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मेक अ रिलेशन विद नाउन और प्रोनाउन with other words. An example, you are seeing here the cat is sitting under the table. अगर बेटा हम इसमें से under को हटा दें, we will remove under here, then sentence is the cat is sitting the table. We cannot get here what is the meaning. बिल्ली टेबल बैठी है. अब टेबल बैठी है, टेबल पर बैठी है, टेबल के नीचे बैठी है, टेबल के पीछे बैठी है, आगे बैठी है, हमें नहीं पता चल रहा है. द कैट इज सिटिंग द टेबल. सो देयर इज नॉट कंप्लीट मीनिंग. सो टू मेक कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस वी हैव टू यूज हियर प्रीपोजिशन, connection of noun and other words, that is either anything else, noun, pronoun, verb, adjective. We have to use here a word that is called preposition. इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग देने के लिए और सब्जेक्ट का रिलेशन ऑब्जेक्ट से, इट मीन्स किसी भी नाउन का रिलेशन किसी भी अदर नाउन से या अदर वर्ब से, एडजेक्टिव से जोड़ने के लिए वी विल यूज हियर अ प्रीपोजिशन. इट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन दैट वी यूज हियर. नाउ yes, now we are discussing here types of prepositions. Types of preposition किस पर डिपेंड करता है? It depends on three types: when, where and in which direction. Three types of prepositions we have. कि when में कौन कौन सी preposition का हम यूज करेंगे, where में हम कौन सी preposition का यूज करेंगे, और डायरेक्शन के लिए हम कौन सी preposition का यूज करेंगे. Three types of prepositions we have. when के लिए हम preposition of time का यूज करेंगे, prepositions of time. and we will use for where के लिए हम किसका यूज करेंगे, prepositions of place. and in which direction को शो करने के लिए हम prepositions of directions का यूज करेंगे. अब मेन पॉइंट इज दिस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम कौन कौन सी प्रीपोजिशन को यूज करते हैं. वी विल यूज हियर इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर. दीज आर द पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर. एंड फॉर वेयर, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. वेयर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज कर रहे हैं. And preposition of place means under, above, in, on, at. These are prepositions of place. And in which direction? It means direction के लिए हम कौन सी preposition का यूज करते हैं, to,
into, of, from. These are prepositions of direction. अब इनको हम किससे समझते हैं? एग्जाम्पल से. So let's look into the example. Prepositions of time. What is the example of preposition of time? First example we can take the birthday falls in the month of January. The birthday falls in the month of January. It means जनवरी में जो बर्थडे आ रहा है वो कब आ रहा है? जनवरी में. बर्थडे कब आ रहा है? जनवरी में. इट मीन्स व्हेन. तो हम क्या बात कर रहे हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की. जब हमें टाइम की प्रीपोजिशन यूज करनी है तो हमने क्या यूज किया? इन. टाइम हमें कैसे पता चल रहा है कि हम बर्थडे की बात कर रहे हैं? बर्थडे कब आता है? जैन में आ रहा है. उसका किसी का भी बर्थडे किसी जिस मंथ में भी आता है, हम उसी के लिए क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. और उसके लिए हम इन का यूज करेंगे. और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के सेकंड एग्जांपल वी विल टेक हियर. माय वैकेशन एंड ऑन मंडे. मेरी वेकेशन मंडे में एंड होती है या हो गई है. तो हम टाइम के लिए क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पर भी टाइम की प्रीपोजिशन के लिए ऑन का यूज कर रहे हैं. फॉर द डे, डे के लिए हमने यूज किया ऑन. और मंथ के लिए हमने क्या यूज किया? इन. इट गेट्स कोल्ड एट नाइट. रात को ठंड हो जाती है. इट गेट्स कोल्ड एट नाइट. रात को ठंड हो जाती है. तो ये भी हमें किसकी तरफ इंडिकेशन दे रहा है? टाइम के लिए, क्योंकि नाइट क्या है? टाइम. तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या हो गया यहाँ पर भी? एट. इन दिस वे वी विल यूज हियर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन द सेंटेंसेस वेयर वी हैव क्वेश्चन व्हेन. जब हमारे माइंड में क्वेश्चन आए ये काम कब हुआ, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. अब सेकंड स्टेप वेयर. सेकंड स्टेप में हमें ध्यान में आ रहा है कि वो चीज कहाँ है? वेयर इज दिस? व्हाट इज दिस टेबल? दिस टेबल इज वेयर. वेयर इज दिस टेबल? हम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये टेबल कहाँ है? वो बच्चे कहाँ है? तुम कहाँ बैठे हो? तो जब वेयर की बात आए, माइंड में क्वेश्चन वेयर का आ जाए, तो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए वी कैन टेक एग्जांपल. यस, फर्स्ट एग्जांपल इज द बुक्स आर ऑन द टेबल. In the starting we have take example. We have taken first example, the cat is sitting under the table. This is also the preposition of place. जब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाए वेयर के लिए, ये चीज कहाँ है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. इन दिस वे, इन विच डायरेक्शन. इट मीन्स प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? He went up the hills. He went up the hills. वह कहाँ किस तरफ गया? ऊपर की तरफ गया. पहाड़ी पर ऊपर की तरफ गया. He went up the hill. तो अब क्या हो गया हमारा? डायरेक्शन को शो करने वाला हो गया है. नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? I went to Delhi. I went to Delhi. तो दिल्ली भी क्या है? डायरेक्शन की तरफ हमें बता रही है. इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. तो टू का यूज भी हमने कहाँ कर दिया? डायरेक्शन के लिए. इन दिस वे वी विल यूज ऑल दीज प्रीपोजिशन फॉर द यूज ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए जो प्रीपोजिशन यूज की जाएंगी उनमें हम टू, इनटू और फ्रॉम का यूज करेंगे.